الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوة الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم وقد صدقت انت یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی ویا سیدنا یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ المجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایتی عزت و توقیر کے لائق جملہ طالبان علوم نبویہ اور جن کی پرنور کوششوں اور کاوشوں سے یہ بزم سجائی اور منائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جس آیت کریمہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 1382 سال ہو گئے، لیکن جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا ہے، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، پھر سے ویسے ہی تازگی نظر آتی ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ شہید ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ آیت نازل ہوئی اور آیت میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی فانی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی۔ آیت کے اس حصے میں شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، انہیں نہ زبان سے مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ ہی دل میں انہیں مردہ گمان کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی موت کے بعد انہیں ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ ان کی روحوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو آسائش و آرام بھی دیا جاتا ہے، اور روحوں کا جو عمل رہتا ہے اس پر اجر و ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، تو نے اپنے مقام و منزلت کو کیسا پایا؟ یہ وہ بندہ ہے جو شہید ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اس کو جنت سے لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، تو نے اپنے مقام و منزلت کو کیسا پایا؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، بڑی خوبصورت جنت ہے، بہت اچھی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، اور کوئی تمنا ہو تو بتا، اور کوئی خواہش ہو تو بتا، اور کوئی چاہت ہو تو بتا، اور کوئی آرزو ہو تو بتا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، اے میرے رب، ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک چاہت ہے کہ میں دنیا میں پھر سے لوٹایا جاؤں اور تیری راہ میں 10 بار قتل کیا جاؤں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جنتی ہے، اس نے جنت بھی دیکھ لی، جنت کے حوروں کو بھی دیکھ لیا، جنت کے حوروں کو بھی دیکھ لیا، جنت کے مشروبات کا بھی مزہ چکھ لیا، جنت کی غذاؤں کو بھی دیکھ لیا،
जन्नत के बड़े बड़े महल्लात को भी देख लिया, फिर भी दिल नहीं भरा। बंदा कहता है अपने रब से, ए मेरे रब, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, एक ख्वाहिश है, एक चाहत है कि मैं दुनिया में लौटाया जाऊं और तेरी राह में 10 बार कत्ल किया जाऊं। आखिर तमन्ना क्यों ना करे? जब बंदा वक्त शहादत के करीब पहुंचता है तो उसकी आंखों से हिजाब को हटा दिया जाता है और वो शहीद के वक्त दीदार इलाही में इस कदर महब हो जाता है कि जो लज्जत उस शहीद को दीदार इलाही से महत्तर होती है वो जन्नत के मुशाहदे से हासिल नहीं होती। ये शहीद का मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद होता है। इमाम हसन हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा तो बहुत अफजल व आला है। और ये आयत जो नाजिल हुई है ये शहीद के बारे में नाजिल हुई है कि जो भी शहीद हो जाएं, जो भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहना, उन्हें मुर्दा ना कहना। चुनांचे हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब शरहुस सुदूर में और सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अपने रिसाले अल-इंतिबाह फ़ी हल्लिन निदा में तहरीर फरमाते हैं कि तीन मुजाहिद अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद किया करते हैं। मुजाहिद किसको कहते हैं? मुजाहिद जिहाद की दो किस्में, जिहाद असगर, जिहाद अकबर। जिहाद असगर जो कुफ्फार के मुकाबले में तलवार से मारा जाए, कत्ल किया जाए, और जो जिहाद अकबर है वो ये है कि वो अपने नफ्स की मुखालिफत करे, यानी अपने नफ्स से जिहाद करे, ये जिहाद अकबर है। सुने, अर्ज कर रहा हूँ कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ में तशरीफ़ फरमा है। यहाँ से लोग तशरीफ़ ले जाते हैं, बारगाह में जाते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, तमन्नाएं मांगते हैं, पूरी होती हैं। गरीब नवाज निगाह करम फरमाते हैं, उनका मुजाहिदा किस कदर सख्त था ये सुने कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपने तदरीस से जब फारिग हुए, अपने इल्म से सीखने से फारिग हुए, तो आप एक मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल पड़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तशरीफ रखें, बैठ जाइए। अर्ज कर रहा था कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जिहाद के मामले में मुजाहिदा बड़ा सख्त था। जब आप अपनी तदरीस व तालीम से फारिग हुए तो आप एक मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल पड़ते हैं, मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल पड़ते हैं। आप हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अपने पीर की खिदमत में लग जाते हैं, जब कोई पीर की खिदमत में लग जाता है, पीर की जब निगाह मिलती है तो काम हो जाता है। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद की बारगाह में आते जाते सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मुरीद से कहा, ए गरीब नवाज, 3 दिन का मुजाहिदा कर, कामिल मुजाहिदा, 3 दिन का कामिल मुजाहिदा कर। चुनांचे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने चले जाते हैं आस्थाने में। जाने के बाद रातों रात अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं, रातों रात इबादत कर रहे हैं, दिन में भी इबादत कर रहे हैं। चुनांचे मुजाहिदा पूरा हुआ। मुजाहिदा पूरे होने के बाद मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, फरमाते हैं, मुर्शिद ए गरीब नवाज कैसे आना हुआ? तो वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते हैं कि ए मुर्शिद 3 दिन का कामिल मुजाहिदा था, पूरा हो गया और मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी के लिए आया हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ए गरीब नवाज अपनी 2 उंगलियों को मेरे सामने कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी 2 उंगलियों को सामने करते हैं। सामने करने के बाद अपनी आंखों को बंद करने का हुक्म होता है। ख्वाजा गरीब नवाज आंखों को बंद करते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद से, अपने मुरीद से कहते हैं, ए गरीब नवाज आंखें खोल। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आंखें खोलते हैं तो मुर्शिद इरशाद फरमाता है, ए मुरीद, ए गरीब नवाज देख 2 उंगलियों के दरमियान क्या दिखाई दे रहा है? चुनांचे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपनी आंखों को खोलते हैं तो कहते हैं, मुर्शिद इन उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम दिखाई दे रहे हैं।
ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुशाहिदे का आलम है। जो एक वली कामिल है, एक वली कामिल है, उनके मुजाहिदा इतना सख्त है। और जो इमामुल औलिया है, हुजूर सैयदना गौसे आजम है, वो फरमाते हैं उनका मुशाहिदा इस कदर सख्त था, इस कदर मुजाहिदा सख्त था कि वो फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमन, कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अल्लाह के तमाम शहर बहुत हैं, बहुत हैं। पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की शहर है, पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की है। तो वो गरीब नवाज को ख्वाजा हुजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। आगे फरमाते हैं कखर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। और देखना भी कैसा, जैसे उंगली पर हथेली पर रखकर राय के दाने को देखा जाता है, वैसे मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अरे मैं कहता हूँ ये शान तो हुजूर सैयदना गौसे आजम की है, जो इमामुल औलिया है। अगर ताबईन का मकाम सैयद गौसे आजम से बुलंद है, तो फिर सहाबा इकराम की इल्म की वुसअतों का आलम क्या होगा। अरे मैं कहता हूँ ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जिहाद की बात कर रहा था कि जिहाद जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए निकल पड़ता है, अल्लाह ताला के राह में जिहाद करने निकल पड़ता है। 3 मुजाहिद थे, तीनों भाई थे, अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद पे निकल पड़ते हैं। एक रास्ते में पहुंचते हैं, ईसाई का एक गिरोह था, उसने तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अपने बादशाह के पास ले जाता है। बादशाह सामने होता है। बादशाह कहता है कि ये मुजाहिद तुम ईसाई बन जाओ, तुम तीनों ईसाई बन जाओ। अगर ईसाई बन गए तो हम अपनी लड़कियों से तुम्हारी शादी करा देंगे, बड़े बड़े महल्लात अता कर देंगे। वो मुजाहिद बोल उठे कि हम ईसाई नहीं बनेंगे। उन्होंने बोला अगर तुम ईसाई नहीं बनोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। वो मुजाहिद बोल उठे अरे गुलामाने मुस्तफ़ा जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इतना कहना था, बादशाह को बड़ा जलाल आ गया, गज़ब आ गया। बादशाह ने तीनों को हुक्म दिया, अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि देग खौलाई जाए। देग का तेल खौलाया गया। खौलाने के बाद एक मुजाहिद से, तीनों मुजाहिद से मुखातब होकर कहा कि इस्लाम लाते हो या फिर देग में डाल देंगे। वो मुजाहिद फिर बोल उठे कि हम जान तो दे सकते हैं लेकिन मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। बादशाह को फिर जलाल आया। उसने एक मुजाहिद को चुनांचे खोलते हुए तेल में डाल दिया। तेल में डालना था, तेल में डालने से पहले उस मुजाहिद ने या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करी थी, या रसूल अल्लाह कहते हुए अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान हो गया था। चुनांचे 2 मुजाहिद बचे। बड़ा समझाया गया लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद पे निकल पड़े थे। वो जान देने से नहीं डरते थे। तो बादशाह ने कहा कि अगर तुम दोनों में से दोनों ईसाई नहीं बने तो फिर तुम दोनों का भी यही हश्र होगा। वो चुनांचे समझाया गया, नहीं समझे। एक और मुजाहिद को तेल में डाल दिया गया। जब तेल में डाला गया, एक बचा था, उसे उनके वजीरों ने कहा कि अगर तुम भी नहीं माने तो तुम्हें भी तेल में डाल देंगे। इतना कहना था तो उनके वजीर बोल उठे कि इसको तेल में मत डालो, इसको मेरे हवाले कर दो, हम इसको ईसाई बना लेंगे। बादशाह ने अपने वजीर की बात मान ली। बात मानने के बाद उसको उनके हवाले कर दिया। हवाले करना था कि वो अपने मकान में ले गए और एक कोठरी में बंद कर दिया मुजाहिद को बंद करने के बाद वजीर ने अपनी खूबसूरत लड़की को उसको बहकाने के लिए लगा दिया। चुनांचे रात का वक्त करीब आया। वो लड़की कमरे में आई तो क्या देखती है कि वो मर्द मुजाहिद रातों रात नफली नमाज पढ़ रहा है, नफली इबादतें कर रहा है, नफली नमाजें पढ़ रहा है, इबादतें इलाही में मसरूफ है। चुनांचे वो लड़की को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिस हसीन लड़की को देखने के लिए दुनिया बेताब है, एक झलक देखने के लिए बेताब है, लेकिन आज ये मर्द मुजाहिद नजर उठाकर भी नहीं देखता। चुनांचे इसी तरह सुबह हो गई। वो मर्द मुजाहिद वापस जाता है। वापस जाके उसके वालिद पूछते हैं क्या माजरा है, क्या हुआ, रात में कुछ बहकाया? तो वो बोली आज उसकी इबादत का कोई खास रात थी, उसने मुझे देखा तक के नहीं और देखा भी नहीं। और फिर दूसरी रात जब जाती है, चुनांचे इसी तरह 40 रातें गुजर गई। वो नफली नमाजें पढ़ रहा,
इबादत पे इबादत कर रहा है, वो लड़की की तरफ नजर उठा कर भी नहीं देखता। वो लड़की को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे वो निगाह उठा कर भी कैसे देखता? जिन निगाहों में हुस्ने मुस्तफा बस चुका हो, वो निगाहें गैर महरम की तरफ नहीं उठ सकती, हसीन महरम की तरफ नहीं उठ सकती। चुनांचे वो मर्दे मुजाहिद गोया कि वो कह रहा था, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। लड़की को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने आखिरकार पूछ ही लिया कि क्या मामला है, किसका फिदाई है, किसका शहदा है कि तू एक आंख उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखता, आखिर क्या मामला है? वो मर्द मुजाहिद फिर बोल उठा, मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। इतना कहना था कि वो लड़की असर ईमान ले आती है, मुसलमान हो जाती है। मुसलमान होने के बाद अस्तबल से दो घोड़े लाती है, दोनों रात फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद क्या देखते हैं? पीछे से घोड़ों की जमात आ रही है, घोड़ों की जमात आ रही है, नूरी काफिला साथ में है, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। जब करीब आए तो पूछा, ए मेरे भाई आखिर क्या माजरा है? तुम्हें तो तेल में डाला गया था, तुम दोनों को तेल में फूका गया था, तुम दोनों ये नूरी फरिश्तों की ग्रोह के साथ आखिर क्या मामला है? उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई बस तेल की एक डुबकी लगाना था, बस तेल की एक डुबकी लगाना था। हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता की गई, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता की गई। अरे ये वो शहीद हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान हुए। कुर्बान होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दी। अरे मैं कहता हूँ ये शान है आम शहीद की, तो इमाम हुसैन आली मकाम जो कि सैयदुल शुहदा है, उनकी शहादत का आलम क्या होगा? इसीलिए बरेली के मुजाहिद ने इमाम हुसैन के मुतालिक इरशाद फरमाया, क्या बात है, क्या बात है रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब सैयदी सरकार आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फूलों से तशबीह दी तो फरमाया, सरताब कदम है तले सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, जगन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी हिज्र फिर जाए दुल्हन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह चुनांचे वाह। इमाम सैयद शुहदा अली मकाम का बड़ा मकाम है, बड़ा रुतबा है। और जो शहीद हुए थे ना, एक बात और बताता चलूं, ये शहीद जो हुए थे और जो कहते हैं या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करना, या रसूल अल्लाह के नारे लगाना शिर्क है। अगर शिर्क होता तो उन्हें जन्नत में जगह नहीं दी जाती। तो इससे पता चला कि या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करना भी शिर्क नहीं बल्कि साबित है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जो चाहते रहते हैं, हुजूर से मोहब्बत किया करते हैं, उनसे साबित है। और फिर यहाँ इतने तलबा बैठे हैं, इनके हाथों में तस्बीह होती हैं, तस्बीह तहरीर करते हैं, दुरूद शरीफ की सदाएं बुलंद करते हैं। ये शिर्क नहीं होता बल्कि इससे चेहरे खिल जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चेहरे खिल जाते हैं ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क हो जाता है। और जब सच्चा इश्क होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके करीब आते हैं। जब करीब आते हैं तो इनके दिलों को भी चमकाते हैं। हमारे इमाम ने भी कहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका से चमकाने वाले। अरे बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो हमसे बोलने में खता गलतियाँ सरसद हुई हैं, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दुआएं से माफ़ अता फरमाएं। हमें हक बोलने और हक सुनने और हक़ को अपना अक़ीदा बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, तादाद काफी